Hello students, today's topic is about endocrine part of the gastric gland. As we have already gone through the first part of the gastric glands, that is the exocrine part, जिसमें हमने पढ़ा था three types of the cells, that is the chief cells हमने पढ़ा था, oxyntic cells के बारे में हमने पढ़ा था, या mucous cells के बारे में हमने पढ़ा. जो आज का टॉपिक है that is about the endocrine part of the gastric gland. It is the second part of the gastric glands. So before that we deal with the endocrine part of the gastric glands. First we should know about the endocrine. तो endocrine के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए endocrine glands किनको हम बोलते हैं. endocrine glands वो glands होता है जो ये secretion power करते हैं into the blood. Which powers their secretion into the blood? Their secretion into the blood. Their secretion into the blood कहाँ पे करते हैं? ब्लड में अपनी जो secretion देते हैं. जो endocrine glands होते हैं that they mainly secrete the hormones. तो hormones किनको हम बोलते हैं? Hormones और the chemical messengers. अगर हम देखेंगे जो stomach है, stomach में दो तरीके के endocrine cells पाई जाती है. The first one is called as the Argentaphin cells. Argentaphin cells. And the second cells are the G cells. तो जो दूसरी cells है, तो these two cells that they are they act as the endocrine cells which are present in the gastric glands. जो Argentaphin cells होते हैं, actually जो Argentaphin है, it comes from the Latin word which means the argentum. तो उसको हम अर्जेंटम बोलते हैं. अर्जेंटम किसको बोलते हैं? सिल्वर को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? सिल्वर. तो एफिनिटस किसको हम बोलते हैं? एफिनिटस. तो ये दो वर्ड से आया है, अर्जेंटम एंड एफिनिटस प्लस एफिनिटस का मतलब होता है दैट इज द एफिनिटी. तो it is pertaining to the cells or tissues or elements that reduce silver ion. जो क्या करते हैं? जो silver ion को क्या करते हैं? reduce करते हैं. किस में? solution में करते हैं. आया समझ में? solution and thereby becoming the stained brown or black color. तो क्या देते हैं? brown या black color देते हैं. फिर से मैं बोलूँगा जो argentum है, Argentaphin cells, it comes from the Latin word argentum. That is the argentum, that is the silver, plus affinitas, that is the affinity. Got it? So pertaining to the cells or tissue or element is that reduces the silver ion. It reduces the silver ions in a solution. And thereby becoming the stained brown or black. ऐसे cells को अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा stain लेता है? That is a black. या तो ये brown होते हैं या तो ये फिर black होता है. तो अगर हम देखेंगे जो Argentaphin cells होते हैं, Argentaphin cells की अगर हम shape देखेंगे, shape इनकी अगर हम देखेंगे that they are round shaped cells. क्या है? round shaped cells है ये. तो अगर हम देखेंगे ये कौन कौन सी सिक्रीशन देते हैं, सिक्रीशन की अगर हम बात करेंगे, ये कौन कौन सी सिक्रीशन देते हैं? दैट दे सिक्रेट इज द सेरोटोनिन. क्या देते हैं? सेरोटोनिन देते हैं. एंड द सेकंड वन इज दैट इज द स्टैटिन देते हैं. एंड द थर्ड वन इज दैट इज द हिस्टामिन. क्या देते हैं? हिस्टामिन. तो अगर हम देखेंगे जो Argentaphin cells होते हैं, फिर से मैं बोलूँगा Argentaphin cells और the enteroendocrine cells, that Argentaphin cells is also present in the intestines and it is usually or abundantly that it is observed in the appendix. Got it? So Argentaphin cells की अगर हम बात करेंगे that it comes from the Latin word argentum plus affinitas, that is the affinity. NITY. तो affinity. Got it? तो actually the cell is pertaining to the it is pertaining to the cells or tissues or elements that reduces the silver ion in the solution, thereby becoming the brown or black. Got it? Thereby becoming the cells become that they attain the brown or black color. Got it? And they are regarding the shape, they are round shaped and they secrete the serotonin, somatostatin and the histamine. तो अगर हम देखेंगे ये तीन कलर्स को, ये तीन सबस्टेंस सिक्रीशन देता है, दैट इज सेरोटोनिन देता है, सोमेटोस्टैटिन देता है या हिस्टामिन देता है. सो अगर हम देखेंगे तो पहली जो सिक्रीशन देता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ
सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का काम क्या रहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरोटोनिन? गॉट इट? एक्चुअली इट इज अ वैसो कंस्ट्रक्टर। क्या है? वैसो कंस्ट्रक्टर है ये। एंड स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स। ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स व्हाट? इट स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स। Stimulates the smooth muscles which are present in the stomach। तो ये इनको स्टिमुलेट करता है। इसको हम बोलते हैं वासोकंस्ट्रक्टर। वासोकंस्ट्रक्टर का मतलब होता है दैट जो ये ब्लड वेसल है, इसका जो ल्यूमन है, ये इसको काम करता है। आया समझ में? तो द सेकंड वन इज दैट इज सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन का क्या काम रहता है? स्टैटिन का काम क्या रहता है? तो अगर हम देखेंगे, इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है? ये सप्रेस करता है। किनको सप्रेस करता है? इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन, द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करेंगे, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो ये उनको सप्रेस करता है। द सेकंड टाइप दैट इज द सोमेटोस्टैटिन। सेरोटोनिन की बात करेंगे, वासोकंस्ट्रक्टर है। तो ये अगर हम देखेंगे, ये ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो बहुत ही कम करता है। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स। किनको करता है? स्मूथ मसल्स को ये स्टिमुलेट करता है, सो दैट दे इंक्रीजेस द कंस्ट्रक्शन, जिससे फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो जाती है। तो सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है? ये हार्मोन्स को सप्रेस करता है। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? सप्रेस करता है, हार्मोन्स को सप्रेस करता है, उनको रोक देता है। किनको? जो हार्मोन्स निकलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। द थर्ड वन इज दैट इज द हिस्टामिन। अगर हम हिस्टामिन की बात करेंगे, हिस्टामिन की बात करेंगे, इट इज द थर्ड वन। गॉट इट? व्हिच गेट्स सेक्रेटेड फ्रॉम द अर्जेंटाफिन सेल्स। तो ये क्या करता है? इट डायलेट्स द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करता है? ये डायलेट करता है। किनको? ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है। जैसे इट इंक्रीजेस द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल्स। गॉट इट? तो इट वाज ऑल अबाउट द अर्जेंटाफिन। फिर से मैं बोलूंगा, जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ गैस्ट्रोग्लैंड्स है, हम इनमें दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स एंड जी सेल्स। जो अर्जेंटाफिन सेल्स है, इट सेक्रेट्स थ्री टाइप्स ऑफ द सबस्टेंस, द सेरोटोनिन, द सोमेटोस्टैटिन एंड द हिस्टामिन। सेरोटोनिन, इट इज अ वासोकंस्ट्रक्टर, इट स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स as well as it constricts the blood vessels. The second one is that is the somatostatin. Somatostatin suppresses the release of the digestive hormones. It suppresses the release of the hormones which get secreted from the digestive tract. The third one is that is the histamine. Histamine plays a significant role that it dilates the blood vessels. Got it? Now the second type of the cell is that is the G cell. G cell किनको हम बोलेंगे? So now the second type of the cells that they are called as the G cells. G cells की अगर हम बात करेंगे, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो वो मैं भी आपको बोलूँगा। जो G cells है, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और उस हार्मोन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन। जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, अगर हम देखेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है जो प्रोटीन का बना होता है। तो ये आपको याद रखना है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिन हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन की अगर हम बात करेंगे, इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ द HCl की जो सिक्रीशन है, ये बढ़ाता है। कहाँ पे? दैट इज इन द स्टोमक। ये कहाँ से इसको सिक्रीट करवाता है? ये ऑक्जेंटिक। आपको पता ही है, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बोला है, जो HCl है, इट गेट सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स। कहाँ से? ऑक्जेंटिक सेल से। गोया कि अगर हम देखेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ HCl फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द सेकंड फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिन इज दैट इज इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ पैप्सिनोजन। तो पैप्सिनोजन की भी सिक्रीशन ये बढ़ाता है। और किसकी? एंड प्रोरेनिन की भी। गॉट इट? तो प्रोरेनिन और पैप्सिनोजन की सिक्रीशन ये बढ़ाता है। कहां से? फ्रॉम पेप्टिक सेल्स। वेरी वेल, पेप्टिक सेल्स और आल्सो कॉल्ड एज चीफ सेल्स और zymogenetic cells which helps in the secretion of the inactive enzyme which we call the पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन। सो पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन में जो निकलता है हार्मोन्स, पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो हार्मोन है, जो पेप्टिक सेल्स से निकलते हैं, उनकी सिक्रीशन कौन बनाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज गैस्ट्रिन हार्मोन्स। जो है वो
इनकी भी सिक्रीशन बढ़ाता है। जिस तरीके से मैंने बोला HCl भी की सिक्रीशन बढ़ाता है फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल्स। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, these are the two types of the enzyme which get secreted from the peptic cells or chief cells or zymogenic cells. It is secretion get enhanced by the gastric hormone. Not only that, जो स्पिंक्टर पाए जाते हैं, like अगर हम स्पिंक्टर की बात करेंगे, स्पिंक्टर्स जो हमने स्पिंक्टर पढ़ा था किसमें, मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टोमक की अगर हम बात करेंगे, वहां पे हमने कॉर्डिक स्पिंक्टर के बारे में हमने पढ़ा था और पाइलोरिक स्पिंक्टर के बारे में हमने बोला था। पाइलोरिक स्पिंक्टर और कॉर्डिक स्पिंक्टर की हमने बात की थी। ये उनकी जो ये मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स को बढ़ाता है। सो इट रेगुलेट्स मूवमेंट्स ऑफ द कॉर्डिक एज वेल एज द पाइलोरिक स्पिंक्टर्स ऑफ द स्टोमक। तो उनकी भी रेगुलेशन कौन करवाता है, दैट इज द गैस्ट्रिन हार्मोन। अगर हम देखेंगे इट वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिन, मगर अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये ज्यादातर अगर हम देखेंगे पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन में, पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक, ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक में पाए जाते हैं, स्टोमक। तो अगर हम देखेंगे एंडोक्राइन सेल्स, तो मैंने आपको आज बोला जो एंडोक्राइन सेल्स है इनमें दो तरीके सेल्स पाए जाते हैं, अर्जेंटाफिन सेल, जी सेल। अर्जेंटाफिन सेल्स मैंने आपको बोला ये लैटिन वर्ड अर्जेंटम से आया व्हिच मींस द सिल्वर, गॉट इट। और एफिनिटास का मतलब है एफिनिटी पर्टेनिंग टू द सेल्स और टिश्यूज या एलिमेंट इज दैट reduces the silver ions in solution, thereby the cells becoming the brown or the black, got it। तो मैंने आपको बोला कि that it secretes the three types of the hormone, serotonin, somatostatin or histamine। Serotonin is the hormone which helps in the which is the vasoconstrictor and stimulates the smooth muscles। Somatostatin suppresses the release of the hormone from the digestive tract, and histamine it dilates the walls of the blood vessel। The second type of the cells, that is the gastrin cells। Gastrin cells are also called as the gastrin cells, also called as the G cells। इनको हम gastrin cells भी बोलते हैं, G cells भी बोलते हैं। तो ये क्या secrete करते हैं, gastrin hormone। It is a polypeptide hormone and it mainly helps in the increase in the secretion of the HCl from the oxyntic cells। या it increases the secretion of the pepsinogen and prorenin from the peptic cells। या अगर हम देखेंगे it regulates what, it regulates movements of the cardiac and pyloric sphincters of the stomach, got it। तो अगर हम देखेंगे तो it was all about the anterior, इनको हम बोलते हैं anterior endocrine glandular cells, got it। तो मैंने आपको बोला जो gastric glands है there are mainly two types of the cells, exocrine cells, endocrine cells। exocrine cells कौन होते हैं, which power their secretion into the cavity like in the stomach। उसमें मैंने आपको बोला था तीन तरीके के होते हैं, chief cells होते हैं, oxyntic cells होते हैं, mucous cells होते हैं। जो endocrine part है, दूसरा part of gastric glands है, तो उनमें मैंने आपको बोला अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं और जी सेल्स होते हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स क्या काम करते हैं, दैट दे सेक्रेट द सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन या हिस्टामिन। एंड गैस्ट्रिन सेल्स दैट दे सेक्रेट व्हाट, दे सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड एज द गैस्ट्रिन हार्मोन। एंड इट इज द गैस्ट्रिन हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द व्हाट which helps in the secretion of the HCl, pepsinogen, prorenin, and it regulates the movement of the cardiac as well as the pyloric sphincters in the stomach। लोकेशन मैंने आपको बोला ये पाइलोरिक रीजन में होते हैं। It was all about the it was all about the glandular cells। Apart from it that the stomach contains one more cell which we call as the stem cell। क्या होता है, तो stem cell। तो अगर हम देखेंगे मैंने आपको बोला एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और क्या होते हैं, एस सेल्स होते हैं। एस सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स। तो स्टोमक में स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम देखेंगे द थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स विच वी ऑब्जर्व इन द स्टोमक दैट इज द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल्स की अगर हम बात करेंगे, स्टेम सेल्स और द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये हमेशा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और दो सेल्स विच ऑलवेज डिवाइड। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स किन सेल्स को हम बोलते हैं, जो हमेशा डिवाइड करते हैं, गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे भी, ये भी एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे ही, ये लाइनिंग पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्लेस करते हैं दूसरे सेल्स को। इनका नंबर तब ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टोमक है, अगर हम इस स्टोमक की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लेयर है ये इरोड हो गई है, तो इनका काम क्या रहता है, इसको
इसको रिप्लेस करना और जो लेयर है इसको वापस से बनाना, करेक्ट। तो अगर हम देखेंगे स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं और जो मल्टीप्लाई और रिप्लेस करते हैं दूसरे सेल्स को, और इनका नंबर तब ज्यादा होता है जब स्टोमक डैमेज होता है, जब क्या होता है गैस्ट्रिक अल्सर होता है, तब ज्यादा से ज्यादा ये डिवाइड करते हैं और इसको वापस इस लेयर को वापस ये बना देते हैं। तो अगर हम देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द स्टेम सेल्स इज दैट दे हेल्प इन द हीलिंग, गॉट इट, दे हेल्प इन द हीलिंग। अब अगर हम देखेंगे नेटशल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे स्टोमक में पाया जाता है। अगर हम स्टोमक की बात करेंगे, आपको पता है ये फंडस है, ये मेन बॉडी है, गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे ये पाइलोरिक है, पाइलोरिक रीजन। अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये कार्डियक रीजन है, क्या है, कार्डियक रीजन। अगर हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाइलोरिक रीजन में पाए जाते हैं, गॉट इट। तो ये फंडस में पाए जाते हैं, ये कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक में पाए जाते हैं। इनका नंबर अगर हम देखेंगे कितना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अगर हम देखेंगे इनका नंबर कितना है, नियरली अबाउट इट हैज बीन एस्टिमेटेड देयर आर नियरली अबाउट 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्टोमक। आया समझ में। तो मैंने आपको बोला कि अगर हम सिक्रीशन की बात करेंगे, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, तो गैस्ट्रिक जूस कैसे सिक्रीट होते हैं, तो पहले मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से होता है थ्रू द वैगस नर्व से भी ये क्या होते हैं सिक्रीट, या मैंने आपको अभी बोला कि दैट इट गेट सिक्रीटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक हार्मोन्स। आया समझ में। तो या अगर हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ये सिक्रीशन कैसे सिक्रीट होते हैं, या कभी कभार क्या होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट से होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाइक टेस्ट से ज्यादा निकलता है, स्मेल ऑफ द फूड से ये ज्यादा निकलता है। कभी कभार जो ह्यूमन बींग्स कभी कभार उनको टेस्ट आता है तो उससे भी ज्यादा ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन निकलती है, या स्मेल से ज्यादा निकलती है। तो अगर हम देखेंगे ये था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे, मैंने आपको बोला पाइलोरिक रीजन में ज्यादा होता है, फंडस में होता है, कार्डियक। तो इनका अगर नंबर देखेंगे 35 मिलियन है। तो इनकी सिक्रीशन कैसे होती है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म थ्रू द वैगस नर्व, गैस्ट्रिन हार्मोन से निकलता है, या कभी कभार साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जब हम फूड को बहुत ही टेस्टी होता है तब जाके ये निकलता है, या जब किसी फूड की स्मेल आती है तब जाके ये निकलता है। तो पर डे की अगर हम बात करेंगे कितना गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है पर डे ये कितना निकलता है, नियरली अबाउट 2 to 3 लीटर से निकलता है, कितना 2 to 3 लीटर्स। मगर इसका ये मैक्सिमम जो है इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, कब, आफ्टर 1 या 30 मिनट्स के बाद, या 30 मिनट्स या 1 आवर के बाद अगर हम देखेंगे इस जो गैस्ट्रिक जूसेस होता है आफ्टर मील की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो ये है सिक्रीशन वो बढ़ जाता है। तो इसकी अगर हम पीएच की बात करेंगे 1.2 to 1.8, ये एसिडिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एसिड व्हिच गेट्स सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स। तो मैंने आपको बोल ही दिया। तो रिगार्डिंग द कंपोजिशन की बात करेंगे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बोला इसमें पेप्सिनोजन होता है, आया समझ में, या प्रोरेनिन होता है, ये आपको याद रखना है, प्रोरेनिन होता है, HCl होता है। तो ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट से निकलते हैं, निकलते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम इट दैट इज या म्यूकस, तो मैंने आपको बोला या पेप्सिनोजन निकलता है, या प्रोरेनिन निकलता है, या HCl निकलता है, या म्यूकस निकलता है। ये दो कहाँ से, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, 1 2 3 4, ये चारों कहाँ से निकलते हैं, ये चारों निकलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो सिक्रेट्स द गैस्ट्रिन, इट ऑल्सो सिक्रेट्स व्हाट, दैट इज अ सेरोटोनिन भी निकलता है, सेरोटोनिन या हिस्टामिन भी निकलता है, या अगर हम देखेंगे
सोमेटोस्टैटिन भी निकलता है, सोमेटोस्टैटिन। ये कहां से निकलते हैं? अपार्ट फ्रॉम इट दैट इट आल्सो सिक्रेट्स द कैसल्स फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये भी यहाँ से निकलता है। तो ये जो गैस्ट्रिन है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन पार्ट से निकलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट। तो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, एचसीएल, म्यूकस, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एक्सोक्राइन पार्ट से निकलते हैं। गैस्ट्रिन या सेरोटोनिन, हिस्टामिन या सोमेटोस्टैटिन की बात करेंगे, ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इनमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स भी होते हैं और एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन देते हैं ब्लड में, और एक्सोक्राइन सेल्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन देते हैं, कहाँ पे देते हैं? डायरेक्टली इनटू द कैविटी, दैट इज द स्टोमक। गॉट इट? तो मैंने ये इसका पीएच भी बोला, इसका ये जूस पर डे से कितना निकलता है और इसका मैक्सिमम कब जाता है? मैक्सिमम जाता है 30 मिनट या 1 आवर के बाद, जब आप मील खाते हैं तो इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो पीएच भी मैंने बोला, कंपोजिशन में मैंने आपको बोला। नाउ द सेकंड टॉपिक इज अबाउट द लिवर। जो अब दूसरा टॉपिक है ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में है, वो है लिवर। तो इसको हम अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो लिवर के बारे में रहेगा। लिवर की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या इसकी फंक्शंस या इसकी या सिक्रीशन, कंपोजिशन या पीएच, उसका भी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे।